morning all of you. Today we will discuss the most important topic of Indian Contract Act 1872, that is agency. Agency in chapter 10 section 182 to 238. Section 182 to 189 deals with the appointment and the authority of the agent. Section 192 to 195 deals with the sub-agent. Section 196 to 200 deals with ratification. Section 201 to 210 deals with the revocation of authority. Section 211 to 221 deals with agent duty to principal. Section 222 to 225 deals with principal duty to agent, and the last one, section 226 to 238 deals with the effect of agency on contract with the third person. So first we will discuss section 182. सेक्शन 182 में डिफाइन किया गया है हु इज़ प्रिंसिपल एंड द एजेंट. तो एजेंट इज़ ए पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल. एजेंट एक ऐसा पर्सन है जिसको एम्प्लॉय किया गया है बाय प्रिंसिपल. किस लिए? टू डू एनी एक्ट फॉर दैट प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल के लिए कोई कार्य करने के लिए, एंड टू रिप्रेजेंट the principal in dealing with the third person. और उस person के लिए the person for whom such act is done, जो ये कार्य करने के लिए अपॉइंट किया गया है, उस person के लिए to whom such act is done or who is so represented is called as the principal. Actual में agent is a connecting link between the principal and the third person, we can say. Now what are the features of the agency? That deals with 183, 184, 185. Section 183, who may employ agent. अभिकर्ता को कौन नियोजित कर सकता है? Any person who is major according to Indian Majority Act and is sound mind may employ an agent. 184 deals with who may be an agent. Agent कौन हो सकता है? Between the principal and the third person. Between the principal and the third person, any person may become the agent. But no person who is not the age of major and sound mind can become the agent. That means कोई भी person जो agent बन सकता है प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेजर हो और साउंड माइंड हो. एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 185, कंसीडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. 186, agent authority may be express or implied. What is express and implied? That is defined under section 187. Express means when a person is authorized to do any act by words, spoken or the written, that is called as express authority. But when the authority is inferred from the circumstances of the case, that is known as implied authority. Now section 188 deals with extent of the agent authority. Agent किस हद तक उसकी अथॉरिटी होती है? एजेंट की अथॉरिटी है कि वो हर वो लॉफुल थिंग करे जो कि नेसेसरी है उस कार्य को करने के लिए. इलस्ट्रेशन है कि A and B, A is in Bombay but B is in London.
बी ने क्या किया है कि ए को, जो कि बॉम्बे में है, डेट को रिकवर करने के लिए एम्प्लॉय किया है। तो ए अब क्या कर सकता है, ए कैन डू ऑल द एक्ट्स या ए कैन अडॉप्ट ऑल द लीगल प्रोसेस जो कि नेसेसरी है इस डेट को रिकवर करने के लिए। 189 एजेंट अथॉरिटी in the emergency. Agent can do all the acts which are necessary for the protection of the principal from any loss. Now, sub-agent. Sub-agent under section 190 to 195 sub-agent है। 190 में क्या कहता है, when agent cannot delegate. agent कब delegate नहीं कर सकता, एजेंट किसी भी पर्सन को लॉफुली एम्प्लॉय नहीं कर सकता। कब, जब एजेंट को बोला गया है पर्सनली कि और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली तुम ही इस कार्य को परफॉर्म करोगे। बट देर आर 2 कंडीशंस व्हेन सब एजेंट कैन बी एम्प्लॉयड। व्हाट आर दीज 2 कंडीशंस? in accordance with the ordinary custom of the trade and in accordance with the nature of the agency. Now, the definition of sub-agent is given under section 191. Who is sub-agent? Sub-agent is a person who is employed by the agent and who is acting under the control of the agent. Now, section 192. 192 is representation of the principal by sub-agent properly appointed. यहाँ पर अगर मान लीजिएगा सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, देन सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी जैसे प्रिंसिपल और एजेंट की होती है। बट एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सब एजेंट के लिए? एजेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एंड सब एजेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट। बट इन केसेस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग, सब एजेंट्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। ये ध्यान में रखना है कि 2 ऐसे केसेस हैं, फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग, तब सब एजेंट जो होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रिंसिपल। नाउ सेक्शन 193 एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। 192 में क्या था, सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड था। बट 193 क्या कहता है कि सब एजेंट विदाउट एनी अथॉरिटी की अपॉइंट किया गया है। तब क्या होगा, एजेंट इस केस के अंदर टुवार्ड सच पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन और प्रिंसिपल के दोनों के ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन। सेक्शन 194 द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। In this case, such person is not the sub-agent, but he is the agent. अब इसको illustration से समझिएगा। क्या कह रहा है कि A ने डायरेक्ट किया है सॉलिसिटर B को, क्या डायरेक्शंस दी है कि एस्टेट को सेल करना है। कैसे सेल करना है? ऑक्शन से सेल करना है, और इस पर्पस के लिए आप एम्प्लॉय कीजिएगा ऑक्शनर को, यानी कि डायरेक्शन इज गिवन बाय A। इस केस में B ने C को एज एन ऑक्शनर अपॉइंट कर दिया। हेयर C इज नॉट अ सब एजेंट, C इज एन एजेंट ओनली। 195 इज सिंपल, एजेंट अथॉरिटी इन नेमिंग सच पर्सन। एजेंट की क्या अथॉरिटी रहेगी इन नेमिंग सच पर्सन? एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट एज अ man of ordinary prudence. Now, we will do ratification of the contract.
Section 196 says the right of the person as to acts done for him without his authority. That means effect of the rectification. Suppose कीजिएगा one act is done by A on the behalf of B. एक एक्ट किया गया है A के द्वारा किसके बिहाफ पे, B के बिहाफ पे, बट विदाउट द नॉलेज एंड द अथॉरिटी. इस केस में द पर्सन क्या कर सकता है? ही कैन इलेक्ट ईदर टू रेटिफाई और टू डिसऑन सच एक्ट. बट इफ ही रेटिफाई देन द सेम इफेक्ट्स विल फॉलो एज ही परफॉर्म द अथॉरिटी. बट आपको ये ध्यान में रखना है कि रेटिफिकेशन कैन बी मेड only for such acts or the agreement which are lawful. For void agreements ratification नहीं हो सकता है. Now 197 ratification same express भी हो सकता है and may be implied हो सकता है. 198 important है. वो क्या कहता है कि knowledge requisite for valid ratification. कोई भी वैलिड रेटिफिकेशन नहीं होगा इफ द नॉलेज ऑफ द पर्सन इज मटेरियली डिफेक्टिव. 199 and 200 they both deals with the unauthorized act. In 199 it says that the effect of ratifying unauthorized act forming part of the transaction. And in section 200 act done by one person on behalf of the other. इस केस में क्या होगा कि रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता, यानी कि थर्ड पर्सन को इंजर नहीं होगा अनऑथोराइज्ड एक्ट के लिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस रिवोकेशन ऑफ द अथॉरिटी डील्स अंडर सेक्शन 201 to 210. 201 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. It says about the termination of the agency. How you can terminate the agency. Agency may be terminated कैसे? By principal, by revoking his authority, by the agent, by renouncing the business of the agency, or the business of agency being completed. By the principal or the agent dying or unsound mind. By the principal if he becomes an insolvent. 202 के अंदर क्या कह रहा है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. अगर मान लीजिएगा एजेंट का इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, तब एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी. सपोज कीजिएगा एक पर्सन है, ए और बी आर टू पर्सन्स. ए को बी का कुछ पैसा उधार में देना है. ए ने बी को अथॉरिटी दे दी कि तुम मेरी लैंड को सेल कर दीजिएगा और उसमें से जो भी मिले सेल करके तुम अपना काट करके मुझे मेरा दे देना. यानी कि अब यहाँ पर बी का क्या है? इंटरेस्ट है. तो आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते बाय ईदर इंसैनिटी और डेथ से. 203 and 204. 203 अब प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट अथॉरिटी. प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है एजेंट अथॉरिटी को. कब? इस अथॉरिटी की एक्सरसाइज होने से पहले. एंड इसके साथ ही 207 कीजिएगा. रिवोकेशन और रिनंसिएशन में भी एक्सप्रेस भी हो सकता है एंड में भी एम्प्लाइड भी हो सकता है. सेक्शन 204 अब रिवोकेशन कब? जब अथॉरिटी पार्टली एक्सरसाइज हो गई. इस केस में प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक अथॉरिटी आफ्टर द अथॉरिटी पार्टली एक्सरसाइज. 205 and 206 it says about the compensation. compensation कैसे? by revocation by principal and renunciation by the agent. जो लायबिलिटी होती है टू पे द कंपनसेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी विदाउट एनी कॉज होगा.
और 206 में क्या कहता है, इसमें कहता है कि रीजनेबल नोटिस आपको देना होगा इस रिवोकेशन और रिनंसिएशन के लिए। 208 इम्पॉर्टेंट है। 208 में क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन क्या होगा। अब देखिएगा, ए कोई पर्सन था, इसने बी को ऑथोराइज किया कि आप गुड्स सेल कीजिएगा और इसके बदले में मैं आपको 5% कमीशन दूंगा। इसके बाद ए ने एक लेटर लिखा और लेटर के थ्रू इसने अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर लिया। अब लेटर तो इसने लिखा है और भेज भी दिया, बट वो उस लेटर को रिसीव करने से पहले बी ने 100 रुपीज़ में इन गुड्स को सेल कर दिया। तो अब ये जो बी ने सेल की है, इट इज़ बाइंडिंग ऑन ए, क्योंकि बी को नॉलेज ही नहीं थी। तो नॉलेज से पहले आप रिवोकेशन नहीं कर सकते। 209 एंड 210। 209 में क्या कहता है, एजेंट की ड्यूटी क्या रहेगी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कब, बाय द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल बिकम एन अनसाउंड माइंड। देन इस केस में एजेंट क्या कर सकता है, एजेंट हर वो स्टेप उठा सकता है जो कि रीजनेबल हैं, किसलिए, फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट। एंड 210 में क्या कहता है, द टर्मिनेशन ऑफ द सब एजेंट्स अथॉरिटी। सब एजेंट की अथॉरिटी कैसे टर्मिनेट होगी, देखिएगा, अगर एजेंट की ही अथॉरिटी टर्मिनेट होगी तो ऑब्वियसली सब एजेंट की भी टर्मिनेट हो जाती है। टुडे we will cover up to this only. In the next lecture we will cover 211 to 238 complete with kinds of the agency, kinds of the agent and some important questions with case logs. Please do like, share and comment. Thank you.